Welcome student to the lecture of magnetic effect due to electric current. अब इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर. ओके, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज किया था. इस लेक्चर में फोर्स एक्सपीरियंस बाय कंडक्टर करेंगे. डस्टर एंड थैंक यू एंड थैंक यू. लेट अस स्टार्ट. अब देखो, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट आए होगा एंड इट इज सराउंडेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड. समझ लो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है. कहां से? यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है. सो दिस कंडक्टर ऑफ लेंथ L which is placed in a magnetic field will experience force. It will experience force. अब ऐसा क्यों होगा? बहुत सिंपल सी बात है. कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, इसके आसपास उसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड होती है एंड व्हेन इट इज केप्ट इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस फोर्स. तो पॉइंट नंबर 1, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, when a current carrying conductor is placed in a external magnetic field, मतलब उसकी खुद की नहीं, दूसरे की, it experiences force. Now this force is given by which formula? The magnitude of force is given by formula BIL sin theta. What is B? B is the external V bar, I is current, L is the length of the conductor, theta is the angle between, किसके बीच में एंगल है ये? B bar and current. ओके, जैसे फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज इज इक्वल टू BQV sin थीटा, वैसे ही ये BIL sin थीटा है. थीटा इज द एंगल बिटवीन B and V, theta is the angle between B and I, where I is not any current. I is the direction of conventional current. I का डायरेक्शन जो है वो conventional current का पकड़ना है, and then only you can find out the theta. Now magnitude हो गया, अभी क्या बचा? Direction. The direction of force is given by Fleming's left hand rule. Left hand rule. Fleming's left hand rule से दिया जाता है. Fleming's left hand rule क्या है? तो align your first finger along the direction of B bar. B bar कहाँ से कहाँ होता है? North से south. Align your first finger along, ये left hand होना जरूरी है. Align your first finger along the direction of B bar. Align the second finger along the direction of current, which is up. B bar के along first है current, conventional current के along second है. Where is the direction of force? Inside. So force will be inside. ये है direction of force. मतलब ये कंडक्टर किधर को जाएगा, किधर पुश मिलेगा? अंदर की तरफ. So this is the force experienced by the conductor placed in a magnetic field. अब maximum current कितना, maximum force कितना और minimum force कितना, ये आप लोगों को बताना है. When is the force maximum? Force experience is maximum when theta is 90 and force is minimum when theta is 0 और 180. इसका मतलब अगर करंट और B बार परपेंडिकुलर फोर्स मैक्सिमम है, लेकिन अगर करंट ऐसा है और B बार ऐसा है, what do you see? The direction of B bar and current is सेम, पैरेलल है, तो फोर्स कितना आएगा? मिनिमम आएगा और 0 आएगा. इसका ध्यान रखना है. अब इसमें एक डेरिवेशन आता है जो हम लोग करेंगे अभी, एंड व्हाट इज दैट डेरिवेशन? तो डेरिवेशन ये है कि दो पैरेलल कंडक्टर्स हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर. दे विल apply force on each other. We are going to derive the expression for that. CBSE में ये derivation बहुत बार आ चुका है, and I would suggest this is one formula you must try to
the derivation tree you should try to learn very well because important बोल सकते हैं इसमें. तो चलो write down the question first. What is the question? मैं dictate कर रहा हूँ, लिखते जाओ आप. Derive the formula of force between. Derive the formula of force between two parallel infinitely long parallel straight conductor carrying current I1 and I2. Okay, and write the nature of the force. Write the nature of the force. Nature of the force क्या है वो मैं बताता हूँ. And define 1 ampere. ये क्वेश्चन 5 मार्क के लिए या 5 मार्क्स के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता है एंड एक सब क्वेश्चन भी आता है इसके साथ. तो क्वेश्चन ये है कि अगर दो पैरेलल कंडक्टर्स है, बहुत लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स, they may carry current in same direction or in opposite direction. If there are two parallel conductors long carrying current I1 and I2, they will exert force on each other. Derive the expression for the force and nature of the force, whether the force is attractive, whether the force is repulsive, when it is attractive, when it is repulsive, ये निकालना है. And hence we have to define 1 ampere. ये theoretical question है, देखते हैं हम लोग. तो सबसे पहले क्या होगा, डायग्राम ड्रॉ करो. इसके बीच में क्या ले लेंगे, डिस्टेंस r ले लेते हैं. ओके, कंसीडर two infinitely long parallel conductors. Let r be the separation between them. Let I1 be the current through conductor 1 and I2 be the current through conductor 2. Full stop. Describe हो गया. To find force experienced by conductor 1 and 2. To find force experienced by conductor 1 and 2. तो ये हमारा एम है. अब ये एक दूसरे के ऊपर क्यों फोर्स लगाएंगे? Why will 1 apply force on 2 and 2 will apply force on 1? तो इसका रीजन ये है कि एक्चुअली दोनों मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं, तो दोनों मैग्नेट्स हैं, तो दोनों एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपेल करेंगे. द ओनली प्रॉब्लम वी हैव इज वी डोंट नो द पोल्स. पोल्स मालूम है क्या, इसका नॉर्थ है तो इसका नॉर्थ है क्या, पता नहीं, वी डोंट नो दैट. तो इसको अप्रोच ऐसे करना है, I1 जो फर्स्ट कंडक्टर है अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा अराउंड 2 एंड 2 जो है वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा अराउंड 1. 2 की फील्ड 1 के ऊपर फोर्स लगाएगी, 1 की फील्ड विच इज अराउंड 2 के ऊपर फोर्स लगाएगी. क्या 1 की फील्ड खुद 1 के ऊपर फोर्स लगाएगी? नहीं, बिकॉज अर्थ अट्रैक्ट्स अस, we attract earth does not attract itself, we do not attract ourselves. तो खुद के ऊपर फोर्स नहीं लगा सकते हम लोग. वैसे ही I1 अपनी मैग्नेटिक फील्ड से खुद के ऊपर फोर्स नहीं लगा पाएगा. फॉर फोर्स यू नीड एन एक्सटर्नल एजेंसी टू अप्लाई फोर्स ऑन यू. ठीक है, तो I2 का B बार इसके आसपास इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, I1 का B बार इसके आसपास इसके ऊपर फोर्स लगाएगा. तो we'll just write that down. Okay, conductor 1 produces B1, magnetic field B1 लिखते हैं इसको. conductor 1 produces magnetic field लिखना जरूरी है, अच्छा लगता है वो. conductor 1 produces magnetic field B1 around कंडक्टर 2. उसी तरह कंडक्टर 2 प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड B2 अराउंड कंडक्टर 1. ठीक है, देयरफॉर कंडक्टर 1 experiences force due to कंडक्टर 1 experiences force due to B2, क्योंकि देखो ना कंडक्टर 2 produces magnetic field B2 around 1.
1 के आसपास कौन सी फील्ड है? B2. So conductor 1 experiences force due to B2. Conductor 2 experiences force due to B1. B1 की फील्ड की वजह से conductor 2 force experience करेगा. Now, what is the force experienced by a conductor? Force experienced by a current carrying conductor. Force experienced by 1 will be B, which is the B bar which is surrounding 1, B2. I, what is the current through 1? I1. Suppose the length is L. Okay. Now, what is the angle between B bar and current? Let us find out the direction of B bar and current. अभी किसका डायरेक्शन निकालना है? B2 का. कहां पे? यहां पे. Use right hand thumb rule. Hold 2 with your right hand. Thumb pointing in the direction of current. B bar is inside over here. यहाँ पे नहीं, यहाँ पे B bar चाहिए. तो एक काम करो, इसको ऐसे घुमा के यहाँ पे लेके आओ. तो is my thumb in the direction of current? Yes, I have extended my fingers till this point. The fingers are curling towards you. तो यहाँ पे B1 जो है is perpendicular to paper, यानी board in this case, and outside, outwards. तो ऐसे horizontal है आपकी तरफ. तो what is the angle between B bar and current? 90. अब force on 2 due to B1 कितना होगा? वो force BI2. इसके ऊपर फोर्स निकालना है तो इसके आसपास कौन सा B बार है? B1. करंट कितना है? I2. लेंथ कितनी L ले लो. साइन 90 होगा, मोस्टली 90 होगा. लेट अस फाइंड आउट B1 किस तरफ है. होल्ड द कंडक्टर विथ योर राइट हैंड. एक्सटेंड द फिंगर्स टिल टू. यहां पे B1 निकालना है. द फिंगर्स आर कर्लिंग इन. सो B1 is perpendicular to paper and inward. So what is the angle? 90. Okay, आ गया फोर्स. F1 आ गया. B2 I1L. F2 आ गया. B1 I2L. But I can also find out B2. What is B2? B2 is conductor 2 produces magnetic field B2 around conductor 1. तो B2 किसका magnetic field है? 2 का. कहां पे? 1 पे. तो B2 is equal to mu 0 I upon, what is the formula of B bar due to a straight conductor? Mu 0 I upon 2 pi R. करंट कितना है? I2. डिस्टेंस कितना है? R. So F1 will become, B2 डाल दो यहाँ पे, mu 0 I2 2 pi R I1 into L. ये L इधर अगर ले लिया तो ये क्या आएगा? ये फॉर्मूला ऐसे आएगा. What is this formula going to give you? ये टोटल फोर्स दे रहा है 1 के ऊपर, but this is giving force per unit length. ये टोटल फोर्स दे रहा है पूरे कंडक्टर पर. लेंथ से डिवाइड करोगे, दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ. वो ये पार्ट ऑफ ये नहीं है, इसको दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द कंडक्टर 1. इसको अलग से लिखते हैं. डोंट राइट दिस इन द डेरिवेशन एज ऑफ नाउ. ऐसे नहीं लिखते. कंक्लूड फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन 1. ओके, अब चलो वही प्रोसीजर रिपीट करते हैं 2 के लिए. F2 is total force on 2. B1 कितना है? B1 is the B bar produced by 1 at 2. तो B bar produced by 1 at 2 कैसे आएगा? mu 0 कौन प्रोड्यूस कर रहा है? 1 I1 upon 2 pi R. ये B1 है at 2, डाल दो F2 में. mu 0 I1 I2 L upon 2 pi R. L इधर आने दो. F2 upon L
ये टोटल फोर्स ऑन 2 है, F2 upon L will be force per unit length on 2, mu 0 I1 I2 upon 2 pi r. Now look at these two expressions. Can I say force per unit length on both the conductors is same? Okay. So सबसे पहले ये लिखना है और इसके बाद क्या लिखोगे? If two parallel conductors are separated by a distance, they will both exert force on each other. इसका मैग्नेटिक फील्ड इसको धक्का मारेगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड इसको धक्का मारेगा. But the force per unit length on both of them, फोर्स पर यूनिट लेंथ का मतलब है 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर के ऊपर का फोर्स. फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन बोथ ऑफ देम इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, म्यू 0 I2 I1 I1 I2 2 pi r 2 pi r. So force per unit length on both of them is equal in magnitude. अब डायरेक्शन की बारी आती है, ये लिख लो पहले और फिर मैं डायरेक्शन की तरफ बढ़ता हूँ. ये डायरेक्शन हमेशा सीबीएसई में ज्यादा महत्वपूर्ण है. फॉर्मूला जनरली सबको आता है, डेरिवेशन सब लर्न कर लेते हैं, लेकिन इट इज द डायरेक्शन दैट इज द एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में डायरेक्शन ज्यादा आता है और थोड़े बहुत कंसेप्ट्स आते हैं. तो उनके ऊपर अगर आप ठीक से काम करोगे तो यू कैन अटेम्प्ट एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस. यू नो दे मे चेंज, सीबीएसई में चेंज एनीथिंग. बेस ये ना डायरेक्शन निकालनी. हाउ डू यू फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ फोर्स? चलो निकालते हैं F2 और F1 का डायरेक्शन. व्हाट इज F2? फोर्स ऑन 2. व्हाट इज F1? फोर्स ऑन 1. तो चलो शुरुआत करते हैं. F2 यू विल यूज व्हिच रूल? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. दिस इज लेफ्ट हैंड. ये किधर जाना चाहिए? बी बार की तरफ. ये किधर जाना चाहिए? करंट की तरफ. ये क्या दिखाएगा? फोर्स. वेयर इज द बी बार? अराउंड 2. इनसाइड. Where is the current going up? Where is the force? In this direction. So F2 इस तरफ है, ये F2 है. चलो F1 की बात करते हैं. F1 क्या है? फॉर्मूला 1. वैसा नहीं. F1 क्या है? फोर्स ऑन 1. वो सोचो तुम लोग. ओके क्या रहता है पढ़ाई के चक्कर में तुम लोग भलते डायरेक्शन में जाते हैं ना, गड़बड़ हो जाती है. तो फोर्स ऑन 1 किधर है रे? फोर्स ऑन 1 कैसे पता करेंगे? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. बी बार किधर है? तुम लोगों की तरफ. अब ये कैसे अलाइन करने का ना, ऐसा अंदर से हाथ तो नहीं जा सकता, लेकिन बी बार तुम्हारी तरफ है. करंट ये देखो, बी बार इज पॉइंटिंग इन योर डायरेक्शन, बी बार इज कमिंग आउट ऑफ द पेपर. तो ऐसा है वो. करंट किधर है? ऊपर की तरफ. तो ऐसे थोड़ा सा भी इतना जिम्नास्ट नहीं है अपन. तो ये देखो करंट ऊपर है कि नहीं? बी बार तुम्हारी तरफ है कि नहीं? तो फोर्स किधर है? F1 इस तरफ है. तो फोर्स ऑन दिस विल बी, ये घर पे ट्राई करो, F1 इस तरफ है. सो फोर्स F2 इस तरफ है एंड फोर्स F1 इधर है. सो दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर. डायरेक्शन ऑफ फोर्स F2 एंड F1 आर अट्रैक्टिव इन नेचर. द फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर if currents are in same direction. Currents are in same direction. अच्छा, तो ये थोड़ा सा अजीब है. क्यों? क्योंकि जब सेम करंट रहेगा तो रिपेल करना चाहिए. हम लोग क्या पता है? नॉर्थ पोल रिपेल, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, सेम डायरेक्शन करंट शुड रिपेल. नो, दे आर अट्रैक्टिंग. तो इसका मतलब है ऑपोजिट डायरेक्शन जब रहेगा तो ये दो लोग एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए. चलो चेक करते हैं. ओके सो ये पहला पॉइंट हो गया, डायरेक्शन ऑफ फोर्स. नेचर ऑफ फोर्स आंसर दे दिया. इफ द करंट्स आर इन सेम डायरेक्शन द नेचर ऑफ द फोर्स इज अट्रैक्टिव. पहला आंसर आ गया. अब ये I1 है, ये I2 है. अच्छा, ये I1 और I2 है. ओके इस चलो फोर्स निकालते हैं. कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या निकालना है? बी बार. इसका बी बार किधर है? अंदर. राइट हैंड से निकालना है. ये देखो, दिस इज राइट हैंड. यूज राइट हैंड टू B bar. Use left hand for force. Hold the conductor with your right hand. Extend the fingers. Fingers are curling in. तो B1 अंदर है. पिछली बार भी B1 अंदर था. अब पंगा B2 का है. Hold the conductor with your right hand. Thumb pointing in the direction of current. Extend the fingers till this point. They are curling in. So B2 भी अंदर है.
ओके, चलो निकालते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स. यू हैव टू यूज लेफ्ट हैंड फॉर फोर्स. बी बार अंदर, करंट ऊपर. ये देखो किसके ऊपर फोर्स निकाल रहे हैं हम लोग, 1 के ऊपर. तो इसके आसपास का बी बार किधर है, अंदर. करंट किधर है भाई, इसका ऊपर. फोर्स किधर है, इधर. तो F1 इधर आया. अब इसका देखते हैं. बी बार अंदर, करंट नीचे, फोर्स किधर है, उस तरफ. तो इसके ऊपर फोर्स इस तरफ है. इसका मतलब क्या है, इफ, अब ये थोड़ा सा रिफाइन तुम लोग लिख लो. इफ करंट्स आर इन opposite direction, the nature of the force is repulsive. ओके, तो इन शॉर्ट अगर ये सब कुछ एक साथ इसका ये करना है हमें, क्या बोलते हैं उसको, वी हैव टू ब्रिंग दिस टुगेदर. व्हाट आर वी गोइंग टू से, वेरी सिंपल. टू पैरेलल कंडक्टर्स separated by a small distance will exert forces on each other. The force per unit length experienced by both of them will be equal. Force per unit length on both of them will be equal. इसके ऊपर force per unit length और इसके ऊपर force per unit length same है. Same as Coulomb's law, same as gravitation. Gravitation में हम लोग equal and opposite force बोलते हैं. Charges में equal and opposite force बोलते हैं. इसमें भी वही है. If two conductors are separated by a distance, they exert equal and opposite force. Okay? देखो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में. देखो फोर्स पर यूनिट लेंथ का मैग्नीट्यूड सेम है, म्यू 0 I1 I2. इतना फोर्स किसके ऊपर है, इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है. लेकिन अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है करंट का, नेचर ऑफ फोर्स इज अट्रैक्टिव. ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो नेचर इज रिपल्सिव. ओके, अब बचा एक ही सवाल, डिफाइन 1 एम्पियर. वो करते हैं और ये पार्ट हमारा खत्म करते हैं. सो डिफाइन 1 एम्पियर. व्हाट इज 1 एम्पियर? 1 कूलम प्रति सेकेंड इज 1 एम्पियर. हाँ ठीक है, लेकिन ये फोर्स पे से भी हम लोग निकाल सकते हैं 1 एम्पियर का डेफिनेशन. तो अभी ऐसे इमेजिन करो. इमेजिन क्या करना है, इसमें सिर्फ कैलकुलेट करना है. सर हम लोग ये 1 एम्पियर क्यों डिफाइन कर रहे हैं, 1 मार्क के लिए? इसका कुछ फायदा है क्या? बिल्कुल कुछ नहीं. फिर हम लोग क्यों कर रहे हैं? मत करो, 1 मार्क खत्म हो जाएगा, मुझे क्या. तो अगर इनके बीच में कंसीडर 2 कंडक्टर हैविंग डिस्टेंस बिटवीन देम एज 1 मीटर, और अगर दोनों में करंट 1 एम्पियर है तो दोनों में इक्वल करंट है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या आएगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ 1 इंटू 1 अपॉन 2 पाई इंटू 1. ये गया 1 जा 2 जा, तो 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन. तो अगर इन दोनों में 1 एम्पियर का करंट है और सेपरेशन 1 मीटर है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगाएंगे, 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन. तो डेफिनेशन बड़ा ही आसान है, थोड़ा बहुत इंग्लिश प्लस माइनस होएगा इसमें. इफ 2 कंडक्टर्स कैरी इक्वल करंट एंड आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर, इफ 2 conductors carry equal current and are separated by 1 meter, if they exert force of 2 into 10⁻⁷ Newton per meter on each other, if they exert force of 2 into 10⁻⁷ Newton per meter on each other, the current through them is said to be 1 ampere. सर कुछ ज्यादा समझा नहीं, लिख दो, लर्न करो. What you must understand is the derivation and the direction. That's it. आशा करते हैं हम लोग अगले लेक्चर में इसकी तरफ जाएंगे, टॉर्क की तरफ जाएंगे. टॉर्क पढ़िए. थैंक यू वेरी मच.